Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I have taken up history as a subject for teaching, as I know many of the students have asked me, have requested me to take up history, civics and geography as well. So I shall be taking up all, but before that I shall be completing up with 7th standard history and 8th standard history. Now let's start with sources of history. Sources of history. Source means from the place from where we get. That is the meaning of source. So, sources of history means the place from where we get information about history, about what had happened in the past. Now, history is basically divided into three parts, that is the ancient Indian history, medieval Indian history, and modern Indian history. The history that we have studied till last year, that is up to 6th standard, 5th and 6th standard, that was ancient history. That is about Stone Age man, his developments, and then the different kingdoms which developed. Then from 9th century onwards, there was a different history up to 18th century. That's why we call it as an medieval history. Then from after 18th century onwards, we can call it as modern history. But in this chapter or throughout 7th standard, we are going to understand more about medieval history. That is the middle time period of history. And in this chapter, we are basically going to study about the sources of history. That is from the place or from the source from where we have got this information about what has happened in the past. Okay, so let's go ahead. So we studied Indian history last year. This year we are going to study the medieval period of Indian history. Broadly, the period from the 9th century CE till the end of the 18th century CE is considered to be the medieval period. This you can underline, as this can be asked as a fill-up anywhere. That is the period from the 9th century CE till the end of the 18th century CE is considered to be the medieval period of Indian history. Now in this lesson we are going to study the sources of medieval history. That is from where we get the information about this history. Now history gives us a chronological, scientific and systematic account of past events. Now chronological means in line. What happens first will come first, then what happens next will come next. Like that, the sequence of events right from the beginning till the end are placed according to their happenings. That is called chronological. And scientific, that means a detailed study of with proper genuine proofs. That is why it is called scientific, with proper genuine proofs. And systematic account. And systematic account means everything is placed systematically one after the other. So history gives us all this knowledge we get from history. So history gives us a chronological, scientific and systematic account of past events. 4 factors are very important from the viewpoint of history. अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो ये 4 चीज़ हमें हमेशा याद रखनी होगी. वो है इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम. इंडिविजुअल इसलिए क्योंकि इंसान की ही हिस्ट्री हम ज़्यादा करके जानते हैं. किंग है, किंग के आसपास के लोग हैं, आसपास की जगह है. Then society, which society the people lived in, what kind of society is, what nature of the society was, or what were their rights, rituals, customs. तो हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं. देन प्लेस, वी लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, फर्टाइल प्लेस और अ फोर्ट एरिया, अ minaret, a monument or what places. And time, of course, in which time the period have taken place. Time. So all the 4 things, all the 4 factors are very important while studying history. So this also can come and name the following or answer in one word what are the 4 important factors of from the viewpoint of history. So you can get they are individuals, society, place and time. Now history must be based on authentic evidence or proofs. Authentic means genuine. ऐसे ही कोई लाके बोल देगा अरे ऐसा हुआ था तो थोड़ी ना हम यकीन कर लेंगे. प्रूफ चाहिए हमें कि ऐसा हुआ था, इसका प्रूफ क्या है. आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा स्टिंग ऑपरेशन करते हैं,
है ना, किसी मंत्री का करते हैं, किसी लीडर का करते हैं, या ऐसे ही रास्ते चलते चलते कोई स्टिंग ऑपरेशन चलता है कि वो देखना चाहते हैं यहाँ क्या होता है। तो ऑथेंटिक, हम अगर कोई ऐसे ही कह दे कि यार वो घूस लेता है तो थोड़ी ना कोई मानेगा, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, लेकिन अगर उसका कोई वीडियो निकाल के बता दे कि चलो वो घूस लेता है तो हमें समझ में आएगा, पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जेन्युइन है ना, हमने देखा है वो चीज़, इसके लिए हम यकीन कर सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है। या कभी कभी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती है या कोई पिक्चर्स, हम किसी ने फ़ोटोज़ ले लिए रहते हैं ऐसे करते हुए। तो हिस्ट्री भी ऐसा ही है, ये एक ऑथेंटिक एविडेंस या प्रूफ पर ही डिपेंड करती है। ऐसे ही किसी ने बोल दिया कि ऐसा हुआ था और वो लिख दिया गया है, वैसा बिल्कुल नहीं है। दीज प्रूफ्स आर नोन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इन सभी प्रूफ को हम कहेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो भी प्रूफ रहता है हमारे पास में, उसी को हम कहेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है ना एक्चुअली क्या हुआ है। नाउ लेट अस क्लासिफाई these sources into material sources, written sources and oral sources to learn more about them. हमने हिस्ट्री के जो सोर्सेज है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दे आर मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज। यानी मटेरियल जो है, जिन मटेरियल से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। फिर रिटन सोर्सेज, क्या राइटिंग मटेरियल है हमारे पास में जिससे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। ओरल सोर्सेज, यानी क्या ओरल हमने ऐसा सुना, ओरली वर्बली क्या हमने ऐसा सुना जो हम हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल सोर्सेज से। उसके पहले आ जाते हैं, वी हैव टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट। अगर जैसे कि पहले ही कहा था, हमको बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं कोई भी चीज़ को हिस्टोरिकल इवेंट मानने से पहले, या अगर हमें उसे स्टडी करनी है तो हमको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट आवर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेज। और अगर हम कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें कोई भी हिस्टोरिकल सोर्स तो चाहिए ही चाहिए। दिस सोर्सेज हैव टू बी वेरीफाइड। और जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्स है वो हम वेरीफाई करते हैं कि ये सही है, गलत है। एंड ऑल्सो वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक। उसका जेन्यूनिटी भी हम चेक करते हैं कि वो कितने सही है। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ दीज सोर्सेज जुडिशियली एंड ओनली आफ्टर अ क्रिटिकल एनालिसिस। और इन सोर्सेज को हमें बहुत ही जुडिशियली यानी सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे ही हम कुछ भी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं, या जो भी हमारे पास कुछ सोर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स है, उसके साथ हम मिस हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं उसको। कोई रिटन मटेरियल है हमारे पास में या कोई रिकॉर्ड है तो उसको मिस हैंडल नहीं कर सकते। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while using this judiciously and only after a critical analysis। मतलब जो भी सोर्स हमारे पास हैं उसका भी वेरिफिकेशन है कि वो कितना सही है, कि झूठा नकली तो नहीं बनाया गया है। तो हिस्ट्री राइटिंग इज़ रियली वेरी टफ वर्क। तो हिस्ट्री इज़ नॉट एट ऑल ईजी। अब सबसे पहले हम फोर्ट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो फोर्ट्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मिला है हिस्ट्री में। हिस्ट्री के मटेरियल सोर्सेज में बहुत सारे टाइप के फोर्ट्स हैं, जैसे हिल फोर्ट्स है जो हिल्स पे हैं, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स। कई फोर्ट्स बनाए गए हैं राजाओं महाराजाओं द्वारा। देन कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि इंक्लूड करते हैं समाधि, ग्रेव, वीरगाला। एंड कुछ बिल्डिंग्स हैं जो इंक्लूड करते हैं पैलेसेस, मिनिस्टरियल मैंशंस, क्वींस क्वार्टर्स दैट इज़ रानीवासा, एंड ऑल्सो हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल। अब ये जो मैं मॉन्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ, समाधीज, ग्रेव्स, वीरगालाज, तो ये मॉन्यूमेंट मतलब क्या होता है, एक टाइप का कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग बनाया गया है या कुछ भी कंस्ट्रक्ट किया गया है उसे हम मॉन्यूमेंट कहते हैं। जैसे समाधि ली जाती है, ग्रेव्स बनाए जाते हैं, ग्रेव्स जो बॉडी को दफन करने के बाद में ऊपर एक स्टोन लगाया जाता है उसे ग्रेव कहते हैं। वीरगाला मतलब ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, प्लेन सपाट पत्थर होते हैं और उसके ऊपर उनके ड्राइंग्स किए जाते हैं और फिर उनको ऐसे बरी किया जाता है एक जगह पे। जैसे लैंड हम बोलते हैं ना शमशान, तो शमशान में कैसे मुर्दे दफनाए जाते हैं, वीरगाला भी एक पर्टिकुलर प्लेस है। ये बेसिकली गांव के बाहर होती है जगह, जो एक पुण्य प्लेस के तरह पूजी जाती है, एक टेम्पल के जैसी ही पूजी जाती है, वो वीरगाला है। इसमें फ़ोटो भी है वीरगाला की, ये देखो ये वीरगाला है। इसमें राम लक्ष्मण सीता है एक इसमें, फिर एक दूसरे इसमें कोई एक आदमी तलवार लेके हैं, लेडी लोटा लेके हैं, और तीसरे में एक खाली लेडी का फ़ोटो है। तो ऐसे ये फ़ोटोज़ दिए गए हैं, दीज आर वीरगालास।
तो फोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्टडी करना चाहें तो एज अ मटेरियल सोर्स फोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्ट्स से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। मॉन्यूमेंट्स में जैसे समाधिज है, ग्रेव्स है, वीरगालाज है, इनसे भी हमें हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पता चलता है। और जो बिल्डिंग्स हैं जैसे कि बड़े बड़े पैलेसेस है, मिनिस्टरियल मैंशंस हैं, आज के ज़माने में ये सब के सब हिस्टोरिकल थिंग्स के लिए रख दिए गए हैं, हिस्टोरिकल स्टडी के लिए म्यूज़ियम में, या गवर्नमेंट ने इन पर अपना कब्जा कर लिया है और पैक कर दिया है। तो आपको अगर देखना है तो उसके लिए एंट्री टिकट लगती है। आजकल बहुत सारे प्लेसेस ऐसे ही हो गए हैं। एंड ऑल्सो हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल, दे ऑल प्रोवाइड इंसाइट्स अबाउट दैट पीरियड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जिस वक्त में बनी हुई है उस वक्त के बारे में हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देती है। और उनको देखने से हमें उनके आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है, क्या आर्ट है, क्वालिटी किस क्वालिटी की आर्ट यूज़ की गई है उसके अंदर, या स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो बोलते हैं, किस स्टाइल में बिल्डिंग बनाई गई है, मुगल स्टाइल है, पर्शियन स्टाइल है, रोम स्टाइल है। तो पूरा उस टाइम पीरियड के बारे में, उस कंस्ट्रक्शन को देखकर हम काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब वो कैसे पता चलेगा, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल क्या है, तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सारी चीज़ें भी हमें इन मटेरियल सोर्सेज से पता चलती है, फोर्ट्स वगैरह से। अब जैसे यहाँ पे फिजिकल सोर्सेज में देख लीजिए आप, जो फिजिकल यानी मटेरियल जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे मेमोरियल्स है। मेमोरियल्स यानी किसी की याद में कोई बनाया जाता है चीज़, जैसे ताजमहल एक मेमोरियल है, बिल्डिंग्स हैं, केव स्कल्पचर्स है। फिर इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शन यानी किसी वॉल पे या कॉइन पे या कहीं पर कुछ खोद के लिखा गया हो, कॉइन्स है, कॉपर प्लेट्स है, फोर्ट्स है, ये सारे के सारे जो है आपके मटेरियल सोर्सेज में आते हैं। नाउ कैन यू टेल मी हाउ डू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री। अभी कॉइन्स के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है, कॉइन्स से हिस्ट्री के बारे में। तो इन एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़मानों में कॉइन्स, कई तरह के कॉइन्स यूज़ होते हैं, जैसे उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कौड़ी बोलते हैं उनको, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना एंड रुपी। आप लोगों ने शायद ये नाम ना सुने हो, रुपी सुना होगा और बाकी के नाम शायद ना सुने हो, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो तो उन्हें ज़रूर पता होगा इसके बारे में। इनफैक्ट कॉइन्स के ऊपर तो काफ़ी प्रोवर्ब्स भी है, जैसे मराठी में कहते हैं, 1 फुट की कौड़ी देणार नाही, मतलब मनी का एक लोएस्ट वैल्यू कॉइन, लोएस्ट वैल्यू का कॉइन भी नहीं दूंगा, ऐसा। फिर 16 आना सच, आना सबसे बड़ा माना जाता था, आना 16 आना यानी 1 रुपया, 1 रुपया यानी 100 पैसा, 100 मीन्स 100%। तो 1 रुपया मतलब कोई भी बात है तो 100% बोलते हैं उसको, तो 16 आना सच। तो आना जो है ये भी एक प्रोवर्ब में यूज़ किया जाता है। जैसे किसी ने अगर कोई बात, सच्ची बात कही है तो कोई सामने वाला कह देगा कि 16 आना सच बात कही है तुमने, तो यानी 100% करेक्ट। ना अभी हम कॉइन्स के बारे में, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री, ये वही चीज़ है यहाँ पे। द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फ्रॉम दीज कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज़, पर्सनल डिटेल एक्सेट्रा। तो ये सब हमें कॉइन से पता चलता है। कॉइन से क्या पता चलता है, जो रूलर्स हैं वो लोग क्या मेटल यूज़ करते हैं, तो उससे उनका इकोनॉमिक कंडीशन पता चलता है। जैसे गोल्ड है तो मतलब काफ़ी रिच होगा, सिल्वर है तो ठीक है, कॉपर है तो और थोड़ा कम। तो ये सब इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। प्लस कॉइन पे कई बार उनके छपे हुए रहते हैं, जैसे कोई रूलर का फ़ोटो रहता है या कुछ लिखा हुआ रहता है, या कोई क्रॉप का, ग्रेन का साइन या शिप का साइन या कुछ भी किया हुआ रहता है, या कई बार कुछ रिलीजियस भी रहता है उनके अंदर, कुछ गॉड के पिक्चर्स वगैरह भी रहते हैं अंदर। तो रिलीजियस आइडियाज़ है, या फिर पर्सनल डिटेल, जैसे कि मैंने बोला राजा महाराजा अपने नाम छपवाते थे, अपनी फ़ोटो लगाते थे और कौन सा ईयर है, तो वो सब पर्सनल डिटेल एक्सेट्रा, ये सब हमें कॉइन से ही पता चलता है। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। तो उस वक्त जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में या एक देश से दूसरे देश के बीच में, वो भी हमें कॉइन्स के थ्रू पता चलता है। कैसे कि यहाँ का कॉइन अगर कहीं और पाया गया है तो पता चलता है कि वहाँ पर यहाँ से सामान जाता था या वहाँ से यहाँ पर आता था, राइट।
सो वी ऑल्सो सी हाउ फार मेटालर्जी हैज़ एडवांस्ड इन दैट पीरियड. मेटालर्जी मतलब मेटल्स कितने एडवांस हुए थे, कितने अच्छे तरीके से हम मेटल्स को यूज़ कर रहे थे. जैसे गोल्ड, सबसे लास्ट में गोल्ड जो डिटेक्ट हुआ था तो वो बहुत ही कॉस्टली एक्सपेंसिव था. तो और वो लोग कितने सफल थे वहाँ उस वक्त के लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में. तो मेटालर्जी मीन्स एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स. तो कितने एक्सपर्ट थे उस टाइम के लोग, तो वो हमें पता चलता है द कॉइन मेटल किस मेटल का बना हुआ है. फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्परर अकबर और शिवा पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डोज. अभी उन दिनों में जो हम अगर मुग़ल एम्परर की बात करें तो राम सीता के या शिव पार्वती के इमेजेस होते थे कॉइन्स पर जब एम्परर अकबर का टाइम था या हैदर अली का टाइम था. तो अकबर के टाइम पे राम सीता यूज़ होते थे और हैदर अली के टाइम पे शिव पार्वती के फ़ोटोज़ कॉइन्स पे छपते थे. तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो भले ही मुग़ल रूलर्स थे लेकिन वो इंडिया के रिलीजियंस को या उनके गॉड्स को, डीटीज़ को उतना ही इम्पोर्टेंस देते थे. प्लस अगर हम देखते हैं अगर मराठास का देखें तो पेशवास जो है दे यूज़ द अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स. वो अपने कॉइन्स पे अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते थे लिखने के लिए. यानी कौन सा लैंग्वेज चलता था उस टाइम पे उसके बारे में भी अभी हमें जानकारी मिल जाती है. सो दिस थ्रोज लाइट ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड. तो कॉइन्स से हमें वहाँ के उस टाइम के लैंग्वेज के बारे में, रिलीजन के बारे में, किंग के बारे में, उस वक्त का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस था उनके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. अब इंस्क्रिप्शन पे आते हैं. व्हाट इज़ एन इंस्क्रिप्शन? एन इंस्क्रिप्शन इज़ अ कार्विंग ऑन अ स्टोन और अ वॉल एक्सेट्रा. इंस्क्रिप्शन मतलब कोई दीवार पे या किसी पत्थर पे खरोच कर करके कुछ लिखा जाता है, कार्विंग. फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बृहदेश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजावुर. ये तमिलनाडु में है बृहदेश्वर टेम्पल जो तमिलनाडु के तंजावुर सिटी में आता है. यहाँ पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, इस टेम्पल में जो दीवार है वहाँ पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस है लिखे हुए उस ज़माने में जब ये बनाया गया था टेम्पल. और इस टाइप के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमको जो चालुक्य में राष्ट्रकूटा, चोला, यादवा किंग्स इनके टाइम कर के भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बहुत सारे. एन इंस्क्रिप्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना जाता है. क्यों? क्योंकि इंस्क्रिप्शन जो है हमें प्रॉपर बताता है उस राज्य के बारे में. क्योंकि इंस्क्रिप्शन में वही होगा जो एक्चुअली घड़ा हुआ होगा या हुआ होगा. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक द लैंग्वेज. इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है? एक तो लैंग्वेज है ना, कौन से लैंग्वेज में वो लिखा गया है. स्क्रिप्ट, क्या स्क्रिप्ट वो लोग यूज़ कर रहे हैं. सोशल लाइफ ऑफ अ पीरियड, तो वहाँ के लोगों का नज़रिया क्या है, उनके राइटिंग से ही पता चल जाता है नज़रिया क्या है, सोशल लाइफ क्या है उनका. इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स. एक कॉपर के प्लेट पे या कॉपर का जो एक पतरा होता है उसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखा जाता है. दे आर कॉल्ड एज कॉपर प्लेट्स. रॉयल एडिक्ट्स, वर्डिक्ट्स एक्सेट्रा आर इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स. रॉयल एडिक्ट्स मतलब राजा महाराजा या कोई ऑफिशियल अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करता है तो वो रॉयल एडिक्ट वो हम कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे उस वक्त हिस्ट्री में. वर्डिक्ट्स यानी कोई जज कोई डिसीजन पास करता है किसी के लिए, चाहे वो क्रिमिनल हो या कोई लॉ क्रिएट करना हो कोई बात पे, तो वो वर्डिक्ट वो भी कॉपर प्लेट्स पे लिखे जाते थे. सो दे आर ऑल आर इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स. अब हम देखें चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क्स, अग्यारीज, दरगाहs, मकबरास, गुरुद्वारास, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, वेल्स, मिनारेट्स, विलेज बाउंड्रीज एंड गेट्स, weapons, utensils, ornaments, clothes, decorative articles, toys, implements, musical instruments are all material sources of history. ये सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे कुछ टेम्पल्स दिए गए हैं अलग अलग रिलीजन वाइज. फिर विलेज में जो हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स, वेपन्स जो भी यूज़ करते हैं इंसान उस वक्त, चाहे अपने खुद के लिए यूज़ करते हो या अपने विलेज के लिए, सोसाइटी के लिए, वो सभी चीज़ें जो हैं वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मानी जाती है. हमें याद होगा हमने 5th 6th स्टैंडर्ड में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में
कितनी सारी चीज़ें हमें मिली थी वहाँ पे, और वो चीज़ों को हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में। चलो, अब हमारा जो मटेरियल सोर्सेज है वो तो ख़त्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं हमारा रिटन सोर्सेज की तरफ। वी लर्न about significant historical events in the medieval period from sources like the writing styles of scripts like Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc., as also from the varieties of different languages, Bhurja Patras, religious manuscripts, treatises, edicts, decrees, biographies, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। अब ये जो है रिटन सोर्सेज, मतलब अभी आप जो ये हिस्ट्री पढ़ रहे हो ये भी तो एक रिटन सोर्स ही है। आप हिस्ट्री की बुक में से पढ़ रहे हो, आपको उन राजा महाराजाओं के बारे में या शिवाजी महाराज के बारे में जो भी पता चलता है आपको इन बुक्स के थ्रू पता चल रहा है। जो डिटेल्ड स्टडी करते हैं वो और बड़े बड़े लाइब्रेरीज़ में जाके बड़ी बड़ी बुक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टडी करते हैं तो एक स्क्रिप्ट है, जैसे कि देवनागरी मतलब ये जो हिंदी मराठी में जो हम लिखते हैं वो देवनागरी। फिर अरेबिक एक लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज है, एक मोदी करके एक लैंग्वेज है, इन लैंग्वेजेस में लिखी गई है। तो ये सब जो लिखे हुए हैं वो हमें पता चलते हैं उनके लिखे हुए मैटर से कि उस वक्त क्या हुआ था। लैंग्वेजेस के बारे में तो हमें पता चलता ही है उन लैंग्वेज से। प्लस भुर्जा पत्र हिमालयाज़ में एक भुर्जा ट्री है, भुर्जा ट्री करके है, तो उसके जो लीव्स होते थे वो बेसिकली शॉर्ट मैसेजेस या मंत्रास या एडवाइसेस वगैरह लिखने के लिए यूज़ किए जाते थे। तो भुर्जा पत्रास तो वो लिखने के लिए यूज़ करते थे। तो भुर्जा पत्रास बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए उस वक्त कि वो लोग क्या स्टडी करते थे या क्या लिखते थे। फिर रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब हमारे रिलीजियस बुक्स जैसे भगवत गीता है, कुरान है और बाइबल है, इस टाइप की रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो हाथ से लिखे जाते थे। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है रिटन सोर्सेज में, क्योंकि उससे हमें जो लैंग्वेज स्टाइल है सब पता चल रहा था। देन ट्रियटाइजेस मीन्स एग्रीमेंट्स। एडिक्ट्स तो मैं रॉयल एडिक्ट्स पहले ही बता चुकी हूँ, जो फॉर्मल रॉयल मतलब ऑफिशियल अथॉरिटी द्वारा कोई आपको लिखा जाता है, मैसेज दिया जाता है। डिक्रीज मतलब एक लॉ जो बन चुका है, जो लिखा जाता है कि नाउ दिस इज़ अ लॉ, डिक्री। बायोग्राफीज़ किसी इंसान के बारे में पूरी उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता है, उसकी पूरी लाइफ के बारे में लिखा जाता है, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। पेंटिंग्स एक्सेट्रा। We can gather information about the food items, attire, conventions and rules of conduct of the people, festivals and about people's life etc. from these sources. तो हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इन रिटन सोर्सेज से हमें? इन रिटन सोर्सेज से हमें पता चल सकता है उनका खाना पीना, उनका कपड़ा लत्ता क्या है, फिर वो क्या चीज़ मानते हैं कि जो चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए, कन्वेंशंस, एक कोई भी काम करने का एक पर्टिकुलर तरीका, उनके क्या कन्वेंशंस थे, मतलब किस तरीके से वो लोग कोई भी काम करते थे। या फिर रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द पीपल, लोगों के लिए क्या रूल्स बनाए गए थे, क्या सही थे क्या गलत थे, किस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, एंड अबाउट पीपल्स लाइफ एक्सेट्रा फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये सब हमारे रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। रिटन सोर्सेज से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। अब ये एक बताया गया है, इस तरीके से डायग्राम से बताया गया है। रिटन सोर्सेज में सबसे पहला हमारा डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट्स ऑफ किंग्स। अभी किंग के कोर्ट में जो भी होता है तो वो सब लिखा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे आज के ज़माने के भी कोर्ट्स में देखते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, या हमने मूवी में देखे होंगे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई टाइपिस्ट टाइपराइटर पे बैठे रहते हैं, कोई हाथ से लिखते रहते हैं, रिकॉर्डिंग होता रहता है वो। तो ये सब क्या हो रहा है, ये जो कोर्ट में जो कुछ भी होता है वो सब लिखा जाता है। किसने किसने गवाही दी, जज ने क्या डिसीजन लिया, वकील ने क्या कहा, ऐसा सब कुछ लिखा जाता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी रिटन सोर्स में आती है कि उस वक्त राजा का न्याय करने का तरीका क्या था, है ना। फिर देन जेनेलॉजीज या शाकावली मतलब किसी भी एक वंश का सबसे पहला राजा कौन था, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, ऐसे लाइन बाय लाइन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पर्सन, बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पर्सन जहाँ से हमको हिस्ट्री पता है उनकी। तो दैट इज़ कॉल्ड जेनेलॉजीज, और यू कैन कॉल दैट शाकावलीज ऑल्सो। देन करस्पॉन्डेंस और डिस्पैचेस,
जैसे हम एक राजा दूसरे राजा को कोई मैसेज भेजता है तो वो एक लेटर लिख के देता है, तो एक यहाँ से लेके वहाँ जाता है, तो करस्पॉन्डेंस, बातचीत। जुडिशियल वर्डिक्ट्स, ऑर्डर्स, ये मैंने ऊपर ही बताए थे। देन ट्रियटाइजेस, बायोग्राफीज, ट्रेवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे उस वक्त। मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स हैड कम एंड दे हैव रिटन व्हाट दे हैव सीन ओवर ईयर। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया यहाँ पे इंडिया में आके, वो सब उन्होंने लिखा, चाहे क्लाइमेट के बारे में हो, यहाँ के खाने पीने के बारे में हो, या लोगों के बारे में हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। तो वो सब कुछ ट्रैवलॉग वो अपने बुक्स में लिखते थे, जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस करते थे वो अपने बुक्स में लिखते थे। उन फॉरेन ट्रैवलर के ट्रैवलॉग से भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है, वो भी एक रिटन सोर्स ही है। देन क्रॉनिकल्स एंड तवारिक्स, क्रॉनिकल्स या तवारिक्स दोनों भी एक तरीके से हम देखा जाता है कि ये जो पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखती है। पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखती है, मतलब स्टार्टिंग से जब से हुए हैं तब से लेके आगे तक का। जिस तरह से आज हम गूगल के ऊपर बिलीव करते हैं कि गूगल स्टार्टिंग से लेके अब तक का हमें सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वैसे ही तवारीख है या क्रॉनिकल। Now during this period, travelers from other countries came to India. They have written travelogues or accounts of their travels, है ना। इसी पीरियड में, जब मेडिवल पीरियड में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए इंडिया में, तो उन लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा इंडिया के बारे में। उनमें से कुछ है अल बेरूनी, IBN बतूता, निकोलाओ मनुकी, बाबर्स बायोग्राफी, फिर शिव भारत और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज, है ना। बाबर की जो बायोग्राफी थी श्री शिव भारत, या फिर संस्कृत में बायोग्राफी लिखी गई थी शिवाजी महाराज की, इट वॉज कंपोज्ड बाय परमानंद। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ट्रैवलर्स जो आए थे उन्होंने ये लिखी थी, एज वेल एज वेरियस अदर बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट रूलर्स, और दूसरे रूलर्स की भी बायोग्राफीज उन्होंने लिखी थी। एंड देयर करस्पॉन्डेंस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द रूलर्स एंड देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर्स। तो ये जो बायोग्राफीज़ लिखी जाती है, बायोग्राफीज से हमें उन रूलर्स के बारे में, और वो किस तरीके से करस्पॉन्ड करते थे, अपना कामकाज करते थे, क्या पॉलिसी अपनाते थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, बहुत कुछ, मतलब उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे थे सबके साथ में, दूसरे राजाओं के साथ में, नेबरिंग स्टेट्स के साथ में, ये काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती थी। तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब नेक्स्ट, तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ, ऐसा। तवारीख रिटन बाय अल बिरूनी, ज़ियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, यहया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा आर अवेलेबल। तो इन सब लोगों ने तवारीख लिखी है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, देखो ऑड मैन आउट के लिए नॉर्मली पूछी जाएगी। ऑड मैन आउट के लिए एक तो आपका ये भी है यहाँ पे, अल बिरूनी, IBN बतूता, निकोला मनुसी, ये जो 3 नाम है, ये इनके साथ में कोई और नाम दे सकते हैं तो वो ऑड मैन आउट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ये जो नाम दिया है अल बिरूनी, ज़ियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, यहया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा, इन नामों के अलावा कुछ दूसरा अलग से नाम दिया तो वो ऑड मैन आउट हो जाएगा। नाउ बखार इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। जैसे कि मैंने बोला था, क्रॉनिकल्स मतलब ये एक शाकावली है जो किसी भी राजा के बारे में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कहाँ से उसका वंश चालू होता है, वहाँ से वो बताती है, ठीक है। तो ये बखार भी एक क्रॉनिकल है जो महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हुई थी। क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स लाइक द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हैपनिंग्स। एक्चुअली इन क्रॉनिकल से हमें पता चलता है एग्जैक्टली कि उस वक्त उनका पॉलिटिकल सीन क्या था उनके किंगडम्स में, या लिंग्विस्टिक, किस भाषा में वो लोग बातें करते थे, उनका कल्चरल लाइफ क्या था, सोशल कंडीशंस क्या थे। तो बखार से हमें ये सब पता चल जाता था, क्योंकि बखार मतलब ये पूरा शाकावली, जेनेलॉजीज पूरा लिखते थे ये लोग। मैनी ऑफ द क्रॉनिकल्स इन मराठी वर रिटन मैनी ईयर्स आफ्टर दैट इवेंट्स हैड हैपेंड। अब मराठी में जब लिखना चालू हुआ था तो बहुत लेट चालू हुआ था, तो इसकी वजह से काफ़ी बखर्स तो बहुत लेट चालू हुए थे। जो इवेंट्स बहुत सालों पहले हो चुके थे उनके इवेंट्स बाद में लिखे गए थे। तो ये हो सकता है कि खाली सुनने पर लिखे गए हो, क्या हुआ है वो एक्चुअल उन्होंने नहीं देखा हो, सारे प्रूफ उन्होंने नहीं रीड करके लिखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉनिकल्स हैं जो मराठा में हुए थे। सम ऑफ दिस क्रॉनिकल्स आर,
उनमें से कुछ क्रॉनिकल्स हैं। महिका वाटीची बखर, सभासद बखर, चिटनिसाची बखर, भाऊसाहेबाची बखर, यानी ये सब लोग हैं जिन्होंने ये बखर लिखी है। The works of contemporary Western historians like Robert Arm, M.C. Sprengel and Grant Duff are also important. और ये जो उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, उस वक्त के जो हिस्टोरियंस थे, उन जैसे रॉबर्ट आर्म, M.C. स्प्रेंगल, ग्रैंट डफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब ये तीनों नाम है, देखो इनके साथ कोई चौथा नाम दे देंगे ना तो वो ऑड मैन आउट हो जाएगा। और फिर बखार में आप देखिए महिका वाटीची बखार, सभासद बखार, चिटनिसाची बखार, है ना, नेम 2 बखार्स ऑफ या 2 और 3 या 4 बखार्स जो भी, तो आप ये भाऊसाहेबाची, यू कैन राइट दीज नेम्स। नाउ ओरल सोर्सेज में हम आते हैं। वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ थ्रू फोक लिटरेचर ट्रेडिशनली पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अभी फोक लिटरेचर जो है, फोक मीन्स ओरली कहा जाता है। ओरली दैट मीन्स जो हमारे दादा परदादा या जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हैं वो हमें सुनाते हैं, हम हमारे बच्चों को सुनाएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो ये क्या है, ओरली डिसेंड हो रहा है फ्रॉम टॉप, सबसे जो जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से ओरली आगे आगे जनरेशन टू जनरेशन ये बातें फॉरवर्ड की जाती है, यानी दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, कई बार जो एक्चुअल स्टोरी रहती है या जो एक्चुअल थिंग्स रहती है उसमें काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं एंड तक पहुँचते पहुँचते। तो इसमें ओरल सोर्सेज में हमारे आते हैं फोक सॉन्ग्स, गाथा, श्लोकास, अभंगास, पोवाडास, प्रोवर्ब्स, लेजेंड्स, मिथ्स, ऐसे। Some examples are oes, folk songs, povadas, folk tales, legends and myths. ये कुछ example है oral sources के। Such type of sources are called oral sources of history. Now, history is written with the help of 3 types of sources mentioned above. अभी हमारे तीनों sources ख़त्म हो गए हैं। Even after it has been written down, research on it goes on continuously. यानी ऐसा नहीं है कि एक बार history लिख दिया तो ख़त्म नहीं होता है, उसके ऊपर अभी भी रिसर्च जो है चालू है। और कभी भी ऐसा लगता है रिसर्च के बाद में कुछ और नई चीज़ सामने आती है तो हिस्ट्री इज़ री रिटन, वापस से लिखी जाती है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के हिस्ट्री बुक में जो लिखा था और हमारे हिस्ट्री बुक्स में जो लिखा है उनमें कई छोटे छोटे चेंजेस हैं, कहीं बड़े बड़े चेंजेस हैं, कहीं छोटे मोटे चेंजेस हैं। तो ये सब जो है हिस्ट्री जो है इसीलिए चेंज होती रहती है क्योंकि रिसर्च कंटिन्यूसली इस पे होता रहता है। और इस रिसर्च के बेसिस पे ही कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ अलग चीज़ पता चलती है जो हमारे पास नहीं है, इसीलिए उस हिस्ट्री को रीराइट करना पड़ता है। अभी तानाजी मूवी रिसेंटली रिलीज़ हुई है अजय देवगन की, उसके अंदर बिल्कुल बताया जाता है कि किस तरह से तानाजी, शेलार मामा, शिवाजी महाराज, वीर माता जीजाबाई, इन सब के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये लोग कोंढाना फोर्ट को जीतते हैं। तो ये तो मूवी देखकर पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। हम सीधे चलते हैं सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रिजर्विंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये देखो किस तरह से हम हिस्ट्री को प्रिजर्व कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। कुछ मेजर्स हमें बताने, वो मैं आंसर तो दूंगी, थोड़ा बहुत इसमें भी है। इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो सबसे पहले तो हमें इवैल्यूएट करना है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, चाहे वो रिटन हो, मटेरियल हो या ओरल हो, कि वो कितना सही है। सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अगर हम ये सोर्सेज यूज़ करते हैं तो हमें थोड़े प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कितने सही है। वी हैव टू एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी, राइट, कितने सही है, एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक, और ये भी देखना है कि कौन से सही है कौन से गलत हैं, यानी कौन से सच्चे हैं कौन से झूठे हैं। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटेग्रिटी ऑफ द राइटर्स। इंटरनल स्टैंडर्ड्स मतलब हम लोग उनको अपने आप से भी जज कर सकते हैं। अगर उन राइटर्स के बारे में पता चले तो हम सबसे पहले उन राइटर्स के बारे में देखेंगे कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या था। इंटेग्रिटी मीन्स कितना ऑनेस्ट है वो राइटर अपने काम को लेकर, या उसके मॉरल प्रिंसिपल्स क्या है ना, मॉरल प्रिंसिपल्स क्या स्टैंडर्ड है उसके मॉरल प्रिंसिपल्स का, क्या वो बिकाऊ है, या उस वक्त का पॉलिटिकल रूलर क्या था, कितना प्रेशर में था वो राइटर जिसने भी हिस्ट्री लिखी है ना, वो उस वक्त का सोशल जो बैकग्राउंड था वो कैसा था उस राइटर के लिए। तो हमें काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है।
So we also have to study the integrity. Integrity is kind of honesty, you can say, of the writers. Their personal interest, और वो उनका खुद का क्या पर्सनल इंटरेस्ट था, the period in which they live and the political pressures on them. It is also important to see whether they rely on hearsay or give an eyewitness account. ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना कि उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है वो सिर्फ सुनकर लिखी है या फिर एक्चुअल में उनके पास कोई प्रूफ था या प्रूफ है जिसको देखकर उन्होंने लिखी है. सो वी नीड टू कंसिडर द एग्जैजरेशंस, मेटाफर्स एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस दे यूज़. तो हमको ज़रूरी है ये देखें कि अगर उन्होंने किसी की तारीफ़ की है तो क्यों की है, वाकई में वो सच में तारीफ़ काबिल था इसलिए तारीफ़ की है, या फिर सिर्फ उस नाम को बढ़ा चढ़ाकर साबित करने के लिए उसने वो तारीफ़ की है, एग्जैजरेशन किए हैं या मेटाफर्स यूज़ किए हैं या अदर लिटरेरी डिवाइसेस. जैसे कि हम कहते हैं बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस है जिससे हमारा राइटअप बहुत ही अच्छा हो सकता है. देयर इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज. अभी किसी राइटर ने जो भी लिखा है उस वक्त के और भी कई सारे राइटर्स ने लिखा होगा ये बात, तो हम उन सभी राइटर्स के राइटअप को देखते हैं और कितना मैच करती है, किसकी बात कितनी मैच करती है वो देखते हैं. अगर मोस्ट ऑफ सबकी मैच करती है तो मतलब ये सच है, और अगर किसी की भी एकदम अलग है तो मतलब हमें उससे टेस्ट करना ज़रूरी है. सो द इन्फॉर्मेशन मे बी वन साइडेड. ये इन्फॉर्मेशन जो भी है वो वन साइडेड भी हो सकती है, कॉन्ट्राडिक्टरी और एग्जैजरेटेड भी हो सकती है. कॉन्ट्राडिक्टरी यानी हमने जो दूसरे बुक्स में देखा और इस राइटर के बुक में जो देख रहे हैं वो टोटली अलग हो सकता है, या इस राइटर ने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के लिखा है कुछ भी. सो इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव, यानी सही तरीके से हमें देखना चाहिए. द सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल एनालिसिस, और इन सोर्सेज को हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, प्रॉपरली चेक करते हैं कि कितने सच्चे हैं या कितने झूठे हैं. द ऑथर्स इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. और ऑथर की इम्पार्शलिटी यानी ऑथर कितना इम्पार्शल है, भेदभाव नहीं कर रहा है, एंड न्यूट्रल है मतलब किसी की तरफदारी ज़्यादा नहीं करता है. तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. तो ये चैप्टर तो मेरा ख़त्म हो गया है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं फास्ट. तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी है, मैंने वो भी दे दिए हैं. सो फर्स्ट वन आपका है लेजेंड, LEGEND. सेकेंड वन तारीख, TARIKH. थर्ड बखर, BAKHAR और बखार. नेक्स्ट फोर्थ वन पोवाड़ा, POWADA. फिफ्थ वन मॉन्यूमेंट, MONUMENT. सिक्स्थ वन इंस्क्रिप्शन, INSCRIPTION. Then seventh one myths, MYTHS. Then eighth one edicts, EDICTS. Then ninth one Ranivasa, RANIWASA. And 10th one coins, COINS. तो ये तो एक एक्स्ट्राज भी था इसके अंदर. फाइंड द ऑड मैन आउट में भी एक्स्ट्राज है. सो मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज एंड अनरिटन सोर्सेज. ओरल सोर्सेज में आपका अनरिटन सोर्सेज ऑड वन है. मॉन्यूमेंट, कॉइन, केव स्कल्पचर्स, स्टोरीज में स्टोरीज आपका ऑड वन होगा क्योंकि बाकी सब तो मटेरियल है, स्टोरीज आपका ओरल है. भुर्जापत्रा, टेम्पल्स, ट्रियटाइज, पेंटिंग्स, इसमें टेम्पल्स नहीं आएगा, टेम्पल्स ऑड मैन आता है क्योंकि टेम्पल्स एक मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन है, बाकी ये सब रिटन है. ओविस, तारीख, फॉकटेल, मिथ, तो इसमें तारीख अलग है, बाकी ओविस, फॉकटेल, मिथ ये सब ओरल सोर्सेज हैं. जेनेलॉजीज, ट्रेवलॉग, क्रॉनिकल, इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन अलग होगा क्योंकि जेनेलॉजीज, ट्रेवलॉग और क्रॉनिकल्स जो है ये रिटन सोर्सेज में आते हैं, इंस्क्रिप्शन मटेरियल सोर्सेज में आता है. चर्चेस, टेम्पल, मॉस्क, मिथ, यहाँ पे मिथ अलग होएगा क्योंकि ये सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप है. मिथ आपका ओरल सोर्स में आता है. सो लेट्स राइट, ये वन लाइन आंसर्स हैं. व्हाट डू मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड? Monuments include samadhis, graves and virgalas and buildings. What is a tarikh? Tarikh or tawarikh means the sequence of events. What qualities of the author are important in the writing of history? The author's integrity, impartiality and neutrality are very important in writing of history. Explain the following concepts. Material sources. Those authentic material evidences or proofs of the ancient period
which support our study of historical events, are called material sources of history. Example: memorials, buildings, cave sculptures, inscriptions, coins, copper plates, forts, etc. Written sources: those authentic evidences or proofs of the ancient period which are in the written form are called written sources of history. Example: documents of proceedings in courts of kings, genealogies, Shakavali, correspondence, dispatches, treatises, biographies, travelogues, chronicles, tawarikh, etc. Oral sources: we understand various aspects of folk life through folk literature, traditionally passed from generation to generation, and they are known as oral sources of history. Example: myths, folk songs, gatha, shlokas, abhangas, povadas, proverbs, legends, etc. ना ये जो मैंने आपको ऊपर आंसर दिए हैं मटेरियल सोर्सेज एंड रिटन सोर्सेज का, ये टीचर्स डिपेंड करती है टीचर्स पे कि ये आंसर्स और भी अगर टेक्स्ट बुक में से कहीं से मार्किंग देते हैं तो ये बहुत लेंदी आंसर्स भी हो सकते हैं. नाउ गिव रीजंस. अ स्टोन इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री. तो a stone inscription, that is a carving on the stone, is a very authentic source of history as it throws light on different features of the ancient time, like the language of communication which existed, script used, and the social, political and economic life of a period. Next is oral sources reveal various aspects of people's lives. ये हमें गिव रीजन देना है. Various aspects of folk life through folk literature passed on to us by our ancestors. They are pearls of wisdom and they hold a wealth of knowledge about the past. It throws light on the rich cultural life of the past and different art forms which were practiced in those times. Next, it is necessary to evaluate the sources of history. Give your opinion. Yes, it is necessary to evaluate the sources of history. Just because a source is old does not mean it is reliable or true. We should examine their authenticity and see which sources are genuine and which are fake. We must evaluate its quality with the help of different methods and through critical analysis. It is necessary to determine the integrity, impartiality and neutrality of the authors by knowing their personal interests, the period during which they lived and political pressures on them. Now can you tell का आ जाते हैं. How do coins narrate history? The coins made by different rulers using metals like gold, silver, copper are important sources of history. ये पूरा टेक्स्ट बुक का ही है. From these coins we learn about the rulers, the period they ruled in, governance, religious ideas, personal detail and use of language in that period. Similarly, we also learn about the financial transactions and economic conditions, the advancement in metallurgy prevailing at that time. From the images of Rama Sita on the coins of Emperor Akbar or Shiva Parvati on the coins of Hyder Ali, we see religious coordination of those days. Now suggest measures for preserving sources of history. ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन वही था. Written documents can be digitized and at the same time the original source should be preserved. मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स को तो हम डिजिटाइज्ड कर सकते हैं लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी है. कंट्रोलिंग मॉइस्चर बाय स्टोरिंग आर्टिफैक्ट्स इज एन एनकेसमेंट विच इज़ ऑक्सीजन फ्री कैन हेल्प इन दियर प्रिजर्वेशन. तो इनके लिए एक स्पेशल बॉक्सेस वगैरह आते हैं जो मॉइस्चर कंट्रोल करता है और ऑक्सीजन फ्री रहता है. ये प्रिजर्व करता है, पेपर्स को सड़ने नहीं देता. Museums and other institutions must put in place steps and measures to preserve material sources of history in a scientific manner. तो म्यूजियम्स या दूसरे इंस्टीट्यूशन जो हैं ये लोग आगे आके मेजर्स लेते हैं टू प्रिजर्व मटेरियल सोर्सेज इन अ साइंटिफिक मैनर, या उनको ऐसा करना चाहिए. हैंडलिंग स्टोरेज एंड डिस्प्ले ऑफ आर्टिफैक्ट्स मस्ट बी डन विद केयर. कोई भी आर्टिफैक्ट हो उसे हैंडल करना है, स्टोर करना है तो बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर वो ख़त्म, सोर्स ही ख़त्म हो जाएगा. देन नेक्स्ट 5th पॉइंट इसका है आर्टिफैक्ट्स एंड अदर सोर्सेज मस्ट बी केप्ट लॉक्ड एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मस्ट बी एंश्योर्ड टू अवॉइड एनी लॉस. इफ एनी आर्टिफैक्ट शोज साइन ऑफ डिटीरियोरेशन, कंजर्वेशन मस्ट बी कैंसल्ड इन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द
सेम। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज। ये इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑर्नामेंट्स तो हमारा मटेरियल सोर्स हो गया, फोर्ट मटेरियल, ओविस ओरल, मिथ ओरल, यूटेंसिल्स मटेरियल, फोक सॉन्ग्स ओरल, वेपन्स मटेरियल, ट्रेवलॉग रिटन, वेल मटेरियल, biographies written, clothing material, povada is again oral sources, copper plate written, folk tales oral, coins material, shloka written, temples material, books material. बुक्स को रिटन सोर्सेज में दिया गया है। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम्स। टाइप्स ऑफ फोर्ट, टाइप्स ऑफ फोर्ट में हिल फोर्ट्स, फोर्ट्स ऑन प्लेन्स, सी फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स एंड सो ऑन। तो इसी के साथ मेरा ये जो आज का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है और मैं आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। हो सकता है थोड़ी बीच बीच में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था हिस्ट्री एक्सप्लेन करने का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी करती रहूँगी और कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा करने की। तब तक के लिए stay safe, stay secure. Thank you.